Hello everybody, welcome to Talking Textbooks Quota Live, Leaving No Child Behind. This is Dr. Gitanjali Sharma. थोड़ा सा आज हम जल्दी बगअप करेंगे बच्चों because today we're gonna take the revision of why do we fall ill, alright? So lectures में we covered everything, है ना? And साथ ही साथ I also told you what all are the things which are very much important. It's a good chapter बच्चे लोग. When it comes to theory, no? So there are lot many things which can be asked in your theory exams as well. Like हमने बहुत सारे differences देखे थे congenital diseases में, acquired में, communicable, non-communicable. Then we studied about various communicable diseases, vaccines के बारे में, है ना? So what we need to do today is जिन बच्चों ने भी अपने notes बनाए हैं, very good, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? और वो अपने सामने अपने notes रख सकते हो. Please keep your eyes, your hands and your ears very active because it's gonna be super rushy. Okay, in the sense ऐसा कि since हमें सारे lectures इस session में cover करने हैं, so obviously it has to be quick. Okay, so this is Dr. Gitanjali Sharma and yes, of course, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी information about talking textbooks which we always speak about, right? Most of you guys know. जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ से देख लो. And that is this is a platform which is getting you prepared for your school examinations 6th to 10th, है ना? Olympiad 6th, 7th and 8th, and of course your examinations like NTSC, NSCJS and PRMO. So कुछ भी हो, talking textbooks is always with you guys. And then this is the team. Alright, so you guys obviously know about them. जिनको नहीं पता है, ये हमारी talking textbooks की team है, straight live from Kota, and then very छोटू सा information about me, of course. So yes, not wasting much of a time. There we go. This is the Telegram handle, बच्चों. This is something which is very important for you guys, and that is whosoever are new here, all the newbies and the people who are already old and they are visiting our YouTube channel frequently. You look for our videos. सबसे पहले तो please सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? एंड देन उसके अलावा इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टॉकिंग टेक्स्टबुक्स फैमिली एट अ मच मोर डीपर लेवल, सो दिस इज हाउ you can be. This is the Telegram handle. Here you get to have a sneak peek in the material DPPs, whatever TTBs are providing for you guys. Okay, definitely बच्चों आपके जितने भी examinations हैं उसमें वो material बहुत ही exclusively have been prepared and is very precise and concised accurately, all right, just for your examinations. So आपको करना ये है टेलीग्राम हैंडल पे जाके टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. देन यू गेट ऑल दीज लिंक्स, just visit them, and in case if you're interested further in purchasing them, there are two very good packages according to your convenience. Whatever suits you, you can just go for it. And of course सारे payment methods available हैं, ठीक है? www.talkingtextbook.in पे आप जाएंगे and then उसके अलावा यू कैन यूज़ माई कोड GS Live. एंड सो सॉरी अगर ये इन्वर्टर का बीप आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे बिकॉज लिटिल बिट पावर इश्यूज या. ऑलराइट, सो हाँ, है ना? तो GS Live आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ माई कोड GS Live. If you want, you can even take a screenshot of it. और नहीं तो आप www.talkingtextbooks.in पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा. GS Live अप्लाई कर दीजिए and then you get a 30% discount. Alright, चलो अब हम फटाफट से प्रॉमिस करते हैं बच्चों. और आज तो इस प्रॉमिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. You know, it's like every class it is, but today we really need to be very much active today. Alright, so yes, bug up. Alright, so I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Why do we fall के बच्चों हम लोग आज लेंगे रिविजन. सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात किया था, है ना? राइट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. हेल्थ क्या बोलते हैं? It's a state of complete physical, mental and social well-being and not merely any absence of a disease or infirmity. All right, so this is an apt definition बच्चों, okay, which has been given by WHO and पूरे world में worldwide accepted definition है. And of course important, can be asked in your theory examination, so please इसके ऊपर ध्यान दो. All right, किसी ने नहीं लिखा है. WHO is the World Health Organization, like most of us know that. All right, चलो moving ahead. साइंस ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है. क्या साइंस हो सकते हैं? बहुत ईजी सा है, राइट? इवन इफ यू आर नॉट स्टडीड इट, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, बट देन अगेन यू नीड अ वेरी गुड लैंग्वेज. ऑल राइट, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स कवर्ड विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू हियर. सो इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन डाउन, जस्ट मार्क डाउन these points, and in case if not, take a screenshot. But बच्चे लोग always try to make notes, all right, because whatever you write
is straightforwardly imprinted in your brains, all right, and then it helps you furthermore. That is why we say पढ़ के लिख के पढ़ा करो, all right. So this is important. Whosoever have written it, well done. नहीं किया है, just can take the screenshot because we really cannot take much time over one slide, all right, because time shortage है, हमें आज पूरा revise करना, all right. No symptoms of disease, anxiety, कोई physical deformity नहीं, mental health उनका बहुत अच्छा हो, okay, psychologically अच्छे हो, ठीक है, कोई tension कोई worries नहीं, सारे body organs properly function कर रहे हैं, अच्छी खासी balanced diet अगर कोई ले रहा है, तो ये सारे गुण अगर किसी में हैं तो इसका मतलब वो healthy consider होगा. Health की significance हम सबको पता है बच्चों, that what is the significance of health. Obviously अगर बोलते ना कि healthy mind resides in a healthy body, right, है ना, then obviously subsequently we look at all these points. The same thing, good health आपको खुश रखती है, cheerful रहते हो, हमारा efficiency, right, for the betterment of ourselves, for the society, for the family. So yes, all these points, right. Now comes your community and personal health. For of course बच्चे लोग आपका environment, अगर हम अच्छे हैं, हम healthy हैं, तो obviously बात है हमारा community healthy है, right, because we are the only people who are making a community, we are the only part of community, all right. So all these points that we have discussed were good economic conditions, social equality, harmony है तो healthy है ना. तो अल्टीमेटली बच्चों अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, राइट, एंड देन वर्किंग फॉर इट, ऑल राइट, एंड देन मेंटेनिंग दी एंड प्रोटेक्टिंग, इम्प्रूविंग दी हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ओके, विच कैन बी डन ऑन अ लार्जर स्केल बाय government and the medical professionals, all right. So yes, community health does play a very very important role, है ना. Now the difference between personal health and community health, all right, what is the difference? Again a very good theory question, it can come, right. बहुत ज़्यादा इस पे हम लोग वो नहीं करते because this is something which you can write on your own as well, but again a very good precise matter has already been provided to you, so please do take a screenshot of it if you want, and if you've already written, jot it down, just look for these important highlighted points which I've already kept, all right. So yes, community health ka definition is a little bit different, actually good difference from the personal health. Maintenance, protection and improvement of health of the whole community, और personal health में वो individual पे आता है. but चलो personal and community health में वही difference है that community would talk about a group of people, whereas your personal health would talk about a single person, है ना. Now comes your disease. exactly disease होता क्या है भाई, बॉडी के किसी भी फंक्शन में, बॉडी ऑर्गन में, राइट, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज फीलिंग मैलेज्ड, ऑल राइट, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और एनी पैथोलॉजिक डिसऑर्डर, व्हाटएवर इट इज, लाइक नॉर्मल से अगर कोई स्लाइट डेफिएशन है बॉडी में तो दैट इज अ डिजीज. नाउ दिस इज द आप डेफिनेशन फॉर इट विच वी हैव रिटन हियर, ऑल राइट, एंड द फादर ऑफ मेडिसिन, इंपॉर्टेंट, हिपोक्रेट्स. Hippocrates is considered as the father of medicine. Important objective type question. Please note it down and mark it as important. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, राइट. सो हम लोगों ने इसका एक टैबुलर फॉर्म देखा था, हेल्दी एंड डिजीज फ्री. दिस इज दी थ्योरी पार्ट, बट इसको टैबुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों. ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन विच इज ऑलवेज सेइंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड डिजीज, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज, what are communicable and non-communicable disease, what's the difference. So whenever there is a difference question, always make it in a tabular form, all right. There are some people who attempt these subjective type questions, like, you know, they'll be writing some points about the for example, let's just suppose taking off communicable and non-communicable, the difference. So they'll write about communicable diseases first, and then later below it they'll write about the non-communicable. So that's not a correct way. However, you're not attempting it wrong, but this gives a much better impact, all right. So that is how you'll be writing. What is healthy? Physical, mental and social well-being, right. And disease free is absence of any body and discomfort. But so important, because at times, you know, what is healthy comes from your health, physical, mental and social well-being, whereas disease free is a different thing. So there is a huge difference between the both, all right. So this is a good question which can be asked in your theory examination, so write it down, okay.
if you've written already, then well and good. नहीं लिखा है तो you can just take down the screenshot. ठीक है? These are not some things which I really need to explain. It's just that, of course, this is an important question when it comes to the difference वाला part. All right? Then healthy. It depends on the person and one's environment, including the society. Okay? हेल्दी में सोसाइटी इंक्लूड हो रही है, मतलब कि पर्सनल एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, लेकिन डिजीज फ्री में इट्स अ पर्सन अलोन. एंड ऑब्वियसली हेल्दी में पर्सन कैन बी अनहेल्दी इन दी एब्सेंस ऑफ डिजीज. ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजीज नहीं है लेकिन पर्सन हेल्दी है. क्यों? बिकॉज सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, बिकॉज सोशल फैक्टर इज ऑल्सो एसोसिएटेड हियर. सो इवन इफ अ पर्सन इज डिजीज फ्री, ठीक है, वी कैन कंसिडर हिम अनहेल्दी. ओके, अगर बाकी एस्पेक्ट्स को वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो, ठीक है. एंड अ पर्सन वुड बी डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड. बच्चों कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. व्हाट इज योर इन्फेक्शन, व्हाट इज योर इंक्यूबेशन. किसी भी तरीके का पैथोजन का बॉडी में एंट्री होना. पैथोजन ऑब्वियसली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट. सो इट वुड cause certain changes in the body, isn't it? All right, so that is called as your infection. Then your incubation period. जैसे ही इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, ऑल राइट, एंड जैसे सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज योर इंक्यूबेशन पीरियड. एंटीबायोटिक्स. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सबसे पहली बात, दे वुड एक्ट ऑन योर माइक्रोब्स. ऑल राइट, है ना. सो दे आर द केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है. हाँ, then pathogen. Disease causing microorganism is called as your pathogen. ठीक है. वैक्सीन, ऑब्वियसली बात है, इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, राइट. सो व्हाट इज अ वैक्सीन? Suspension of disease producing microorganisms which is modified by killing or weakening, attenuated so that the suspension will not cause any disease. And I told you exactly बहुत अच्छे से what is the procedure for making a vaccine, right? Exactly हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी dead pathogen जिसके अगेंस्ट हमें बनानी है वो, या फिर उसका डिटॉक्सिफाइड फॉर्म, राइट, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं सो दैट आर WBCs वुड एक्ट ऑन इट एंड मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, राइट. दैट इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स, है ना. एंटीबॉडीज. So their antibodies, special chemicals found in the blood which act against the germs or the secretions, right. So our antibodies are basically doing what? They are helping us in building up our immunity. Antigens, proteins or other harmful chemicals that are present on the surface of invaders. इन्हीं एंटीजन के ऊपर आके हमारी एंटीबॉडीज स्टिक करती हैं, ऑलराइट, एंड उसके बाद डिटेक्ट करती हैं, ओके, सो दिस इज अ फॉरेन सब्सटेंस. नाउ दी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेज, इसमें था काफ़ी मैनिफेस्टेशन से बच्चों मैंने इनकी काफ़ी सारे साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होना, राइट. सो देयर आर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स विच वुड अपीयर after an infection, right. So that is how we get to know, okay, so there is a little bit of malaise, there is a little bit of discomfort, ठीक है. So headache, जैसे headache, it may be due to stress, meningitis, all right. So headache is a manifestation of this issue, है ना. So this is what is written here, ठीक है. Now लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था कितने टाइप के डिजीजेस होते हैं बच्चों. दिस टेबल, दिस फ्लो चार्ट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज, किसी ने नहीं लिखा है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स प्लीज राइट इट डाउन. दैट we divided diseases into 2 types. First, on the basis of duration we divided them, and then on the basis of origin, है ना. ड्यूरेशन के बेसिस पे chronic and acute, origin के बेसिस पे congenital, acquired. congenital वो जो कि already by birth present होंगे, and acquired जो after birth we कैच, ऑल राइट, या फिर जो हमें लग जाती है. अक्वायर्ड में भी देयर कैन बी कम्युनिकेबल, राइट, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, किसी माइक्रोब से हमारे थ्रू हमारे अंदर आ रही है, एंड राइट, है ना. एंड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में ऐसी डिजीज होती हैं जो किसी ना किसी न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर किसी ऑर्गन में फेलियर की वजह से, फेलियर नहीं भी तो किसी भी ऑर्गन के डिसफंक्शनिंग की वजह से हो जाती है, ऑल राइट, ठीक है. तो ये बॉडी की अपनी किसी इशू की वजह से हो जा रही है, तो दे आर नॉन कम्युनिकेबल, ऑल राइट. ओके, चलो. कम्युनिकेबल में हम लोगों ने देखा था कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस. कंटेजियस यानी कि दे आर कम्युनिकेबल हाउएवर, ठीक है. सो फिजिकल टच की वजह से अगर हो रही है तो दे वुड बी कंटेजियस. नॉन कंटेजियस
जो किसी भी वेक्टर की वजह से हो रही है, जैसे मलेरिया, है ना। सो मलेरिया किसी को टच करने से नहीं होता है। अगर हम किसी पर्सन को मलेरिया है एंड इफ वी आर टचिंग दैट पर्सन, तो हमें मलेरिया नहीं होगा, बिकॉज इट स्प्रेड्स बाय अ फीमेल अनोफिलीज, राइट। यू नीड अ वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन, राइट। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में यू गेट डीजेनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीजेज, जैसे हार्ट डिजीजेज हो गया, क्या, हार्ट अटैक विच वी कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, नेफ्राइटिस, किडनी डिजीज, है ना। देन डेफिशिएंसी, सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है अगर बॉडी में, अगर विटामिन सी डेफिशिएंट हो, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो क्या हो गया आपका, रिकेट्स हो गया। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो अनीमिया, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, राइट। बॉडी के कुछ सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। चलो मूविंग अहेड, है ना। अब देखो सिमिलर बच्चों लोग यहाँ पे बताया हुआ है इसी टेबल को, ये है आपका मेन क्रक्स, राइट। ये पता है तो आगे का थ्योरी आराम से समझ में आएगा, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अक्यूट डिजीज क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है लेकिन सीवियर कोर्स होता है, ठीक है। इसमें पर्सन नॉर्मल लाइफ पे आराम से आ जाता है, रिटर्न्स टू दी नॉर्मल हेल्थ, है ना। जैसे कि कॉमन कोल्ड है जो कि कुछ दिनों के लिए लास्ट करता है एंड द पर्सन इज फाइन लेटर, ऑल राइट। एंड देन कोई एज सच बैड इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे इसके लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होते हैं, है ना। क्रॉनिक में ये होता है दैट इट्स लॉन्ग लास्टिंग, है ना, स्लो टू डेवलप, ऑल राइट। पर्सन डजंट फील्स फाइन फॉर लॉन्ग, मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ, राइट। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टीबी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना। सो सच डिजीजेस वुड बी योर क्रॉनिक। पर्सन कैनॉट रिटर्न बैक टू द नॉर्मल हेल्थ, इट्स लाइक बहुत लंबा टर्म इनका चलता है, लॉन्ग लास्टिंग, all right. See, now this is the difference between acute and chronic. Very important table, kids, please write it down. In case if somebody has not written, do take a screenshot of it. This is अति आवश्यक, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशंस में, प्लीज इसको लिख लो। ड्यूरेशन अक्यूट डिजीजेस में क्या होगा, क्रॉनिक में क्या होगा, पर्सन्स, राइट, हु ऑल सफर। ऑब्वियसली बात है कि अक्यूट डिजीजेस में जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह है, राइट, तो ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रॉनिक डिजीजेस लाइक टीबी और शुगर और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई रहना यानी कि हाइपरटेंशन, है ना, हर किसी को नहीं होता है, ठीक है। बॉडी डैमेज एक्यूट में काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो इतना ज़्यादा नहीं होता, राइट। एंड क्रॉनिक डिजीजेज में अफेक्टेड ऑर्गन में प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक इसमें जो है प्रॉब्लम रहता है ना। आया समझ। देन रिकवरी इसमें जल्दी हो जाती है, उसमें या तो खुद से होगी या ट्रीटमेंट लेते रहो, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है। इफेक्ट एंड लॉस, सो या बहुत इजी सा है, इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है एक्यूट में, इसमें लंबा टर्म तक इफेक्ट रहेगा। लॉस में है कि इंटरप्शन होगा वर्क में, यू विल फील थोड़ा सा, एंड फॉर दैट फॉर अ टेम्पररी पर्पज व्हेन इट कम्स टू एक्यूट। क्रॉनिक में लॉन्ग टर्म चला जाता है बच्चे लोग, वही है कि एक्यूट इज लाइक छोटा एंड जल्दी से होके ख़त्म, क्रॉनिक में काफ़ी लंबा कोर्स चलता है, ठीक है। चलो ओरिजिन के बेसिस पे हमने देखा कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, राइट। So communicable and congenital and acquired, okay. So this table बच्चों communicable and non-communicable will be studying in this table straightforward, ठीक है। हाँ, congenital and acquired में वही है बच्चे लोग, there are certain diseases जो कि हमको already by birth लगे हुई आती है ना, ठीक है, जो कि क्या बाय बर्थ आती है, विच इट मे बी ड्यू टू सम क्रोमोसोमल abnormality, ऑल राइट, और मे बी सम सेलुलर इशू, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, प्लीज राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट। दे आर द डिजीजेज विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होगी या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होगी, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होगी। आया समझ, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी हो जाती है ना, एल्बिनिज्म, एल्बिनिक, यू मस्ट हैव सीन वाइट पैचेस जो हो जाते हैं कई लोगों के स्किन पे, राइट। सो ये सब की सब क्या है, कॉन्जेनाइटल। अक्वायर्ड में आपके आएंगे बच्चों डिजीजेज विच आर अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, है ना।
जो कि बर्थ के बाद अक्वायर हो जाते हैं, बर्थ के बाद आपको लग जाते हैं, दे आर नॉट इनहेरिटेबल एक्सेप्ट सर्टेन लाइक शुगर, अगर मैं बात करूँ डायबिटीज, एट टाइम्स इट शोज फैमिली हिस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है, यूजुअली इट हैपन्स कि अगर मदर को है तो आगे चिल्ड्रन में भी होने की पॉसिबिलिटी होती है, सो वहाँ पे वो एक एक्सेप्शन है। एनीवेज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरल बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एक्वायर्ड डिजीजेस कभी भी इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है बाद में आफ्टर बर्थ दे आर एक्वायर्ड। बर्थ के साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे चेंजेस ला रही हैं? आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, है ना, इन योर जीन्स। सो दैट इज वाई इट इज ट्रांसफर्ड। Getting my point? So yeah, examples important है बच्चों. If somebody is not written them down, write it down. Congenital में hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, Down syndrome, albinism, etc. ठीक है? Okay. Now coming to your communicable or infectious and non-communicable or इस टेबल को लिख लो, तब तक I'll have some water. टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी ने नहीं लिया है तो जस्ट राइट इट डाउन. दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ थियोरी एग्जामिनेशन एज वेल. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? नॉन कम्युनिकेबल. स्प्रेड होगा तो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी, दैट वुड बी अ कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल वुड नॉट स्प्रेड. एग्जाम्पल्स दोनों में बहुत जरूरी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने देखा था बच्चों, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की लैक की वजह से होते हैं ना. रिकेट्स, जैसे विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में रिकेट्स हो जाएगा. विटामिन सी की होगी स्कर्वी हो जाएगा. आयरन अगर कम है तो अनीमिया हो जाएगा. ठीक है, तो वो होते हैं आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस. डीजेनरेटिव, जो कि एजिंग या मैल फंक्शनिंग होगी किसी के भी बॉडी पार्ट, ऑर्गन और पार्ट ऑफ अ बॉडी, है ना. तो हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट, यूनिट जो होती है उसकी, तो उसका इन्फ्लेमेशन वुड बी और नेफ्राइटिस. सो जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ degenerative disease, that is your nephritis, and I discussed about it properly when I took a lecture, right? So अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा. एलर्जीज, जैसे किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, डस्ट की वजह से एलर्जी है, राइट, तो हमने उसको क्या बोला? वो एलर्जी की वजह से, जिसको बोलते हैं हे फीवर, है ना, हे फीवर होता है, जिसका नाम एलर्जिक राइनाइटिस है. ठीक है, देन कम्स योर कैंसर और ट्यूमर. So these all are coming in your degenerative diseases. Uncontrolled growth of cells. And obviously we know cancer is not curable. It's just that early stages में detect हो जाता है तो it can be cured. ठीक है ना? अगर नहीं लिखा हो प्लीज इसको लिख लो, note it down. Examples are important, they are not mentioned here, so you can just write it down. Allergies में allergic rhinitis, which is hay fever, and degenerative diseases में you can write nephritis. चलो आगे बढ़ते हैं. Mental disorders, उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. बच्चों क्या होता है ना कि कुछ कुछ डिजीजेस हमें हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से भी आ जाते हैं. कैसे? हम ऐसी जगह कुछ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे या तो कुछ हार्मफुल ऐसे केमिकल्स हैं, है ना, या फ्यूम्स हैं, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसकी वजह से हमें डिजीज हो रहा है. उसमें क्या? सी अबेस्टस की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ अबेस्टस, राइट. लंग कैंसर इन अबेस्टस. फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, तो उनमें लंग कैंसर कॉमन होता है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज योर अबेस्टस. ठीक है. एडिक्शन, बहुत ज्यादा ड्रग्स, टबेको, अल्कोहल, है ना, उसकी वजह से भी होता है. क्या? ठीक है. सो एडिक्शन इज लाइक अ मेंटल डिसऑर्डर, है ना. फिर हमने एग्जांपल्स क्या देखे थे और मेंटल डिसऑर्डर्स के, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, राइट. मूविंग अहेड. अब कॉजेज, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा बच्चे लोग? अबाउट द कॉजेज. देयर लॉट मेनी कॉजेज, हम लोगों ने पीछे देखा ही है. अगर कुछ पैथोजेंस की वजह से होगा, राइट, कुछ वेक्टर्स की वजह से हो जाएगा. देन डाइट में न्यूट्रिशन कम है तो हो जाएगा, है ना. तो पहला है पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स. ये सब की सब जो है आपके क्या कॉज करते हैं? डिजीजेज, राइट. एंड दैट टू इन दैट द प्राइमरी, दे आर द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज. Important, they are the primary cause of infectious disease. What? Different types of microbes. Now we talk about the lack of nutritious diet, है ना. This is the
सेकेंड लेवल कॉज। प्राइमरी लेवल पे अगर कोई इंसान को बीमारी हो रही है वो पैथोजन से हो रही है, राइट। नाउ सेकेंड लेवल यानी कि अगर उसके बाद अगर इसकी वजह से नहीं है तो सेकेंड हो सकता है। हम लोग किस लेवल पे आते हैं, चेक कैसे करते हैं? वी कम टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉब्ली दैट पर्सन इज नॉट हैविंग adequate nutrients in his body, so that definitely he is feeling weak. All right, so lack of nutritious diet. All right, so if you have not taken it down, just take it a screenshot. चलो आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब ऑब्वियसली बच्चों, सी वी नो दैट काफ़ी अगर अनहेल्दी हम खाते हैं, अनहेल्दी स्पेशली पानी से बहुत डिजीजेस फैलती है ना। सो इफ दे आर नॉट प्रॉपर सर्विसेज इन द सेंस नो लैक ऑफ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, राइट, एंड देन कुछ सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, मतलब जो भी कम्युनिटी सर्विसेज जितनी भी होती हैं, राइट, इफ दे आर इम्प्रॉपर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज अलॉन्ग विद द हाइजीन फैक्टर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, राइट, सो उसकी वजह से भी ये हमें डिजीजेज लग सकते हैं, राइट, है ना। सो स्पेशली अगर आप स्लम एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत मिसिंग है बच्चे लोग, राइट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाते हैं वो लोग, राइट, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, है ना। सो दे आर लाइक लैकिंग इन सर्टेन बेसिक कम्युनिटीज। लास्ट पॉइंट कि पैथोजन फर्स्ट लेवल, then lack of nutritious diet and poor immunity is the second level cause of disease, and lack of public services is the third level. So these are the three levels you must be knowing, all right, important for your examinations as well. So please take it down. These three are the three levels of cause for the disease, है ना। चलो अब आते हैं हम कुछ हमारी बीमारियों के ऊपर जिनके बारे में हमने पढ़ा था। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो बच्चों ये टेबल अगेन इंपॉर्टेंट कुछ डिजीजेस के बारे में बता रही है, फटाफट से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका वापस से, ठीक है। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स कैन बी आस्क्ड स्ट्रेट इन योर सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। सो दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू। मलेरिया किससे फैल रहा है? प्लाज्मोडियम से, है ना, ठीक है। किससे फैल रहा है? एनोफिलीज, मस्कीटो की बाइट से। सिम्टम्स ये हैं, ठीक है। सारा का सारा वी कैन नॉट रीड इट आउट, बट ऑब्वियसली व्हाट आई एम गोना डू इज जो इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो नेम है दैट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, किससे ये स्प्रेड हो रहा है ना। सिम्टम्स वगैरह आपको खुद को लर्न करने हैं अच्छे से, ऑलराइट। सी पोलियो इज लाइक वेक्टर बॉर्न, पोलियो माइलाइटिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिपलिंग डिजीज। इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज ले फोकस दैट on that you must always be knowing different terms to a terminology, ठीक है, because they can straightforward be asked just to maybe confuse you, maybe ask, maybe look for your knowledge, check your knowledge, how is it. So they may straightforward ask in the question like which amongst the following also called as the crippling disease. You must be knowing that is your poliomyelitis caused by poliovirus. And also remember बच्चों, the smallest virus known is your poliovirus, important, ठीक है। थर्ड इज योर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बच्चों ABCD E and G टाइप्स का होता है, उसमें सबसे खतरनाक होता है आपका हेपेटाइटिस B, ठीक है, क्योंकि उसके सिम्टम्स भी खतरनाक आते हैं। बाद में अगर अनरेगुलेटेड रह गया तो मैलिग्नेंट कैंसर हो जाएगा लिवर सेल्स का, ठीक है, लिवर का कैंसर होने का खतरा है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। All right, so I hope this is done. You guys must have taken it down. This is important. Moving ahead, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Sorry, उससे पहले है रेबीज। हमें पता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग मंकी की वजह से फैल रहा है ना, ठीक है, सलाइवा की वजह से फैलता है ये। सो दिस इज जिसकी वजह से कम्युनिकेट हो रहा है, इसके सिम्टम्स आप लोग देख लो, ठीक है। एड्स किसकी वजह से हो रहा है? दैट्स अ वायरल डिजीज, ऑब्वियसली नॉन क्योरेबल, विद इन 1 to 2 years इंसान की डेथ हो जाती है। ऑल यू कैन डू इज इंटरफेरॉन से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, दैट्स इट, राइट। ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ट्यूबरक्लोसिस किससे हो रहा है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर TB, ठीक है।
टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, डायरिया, ई कोलाई, शिजेला स्पीशीज, कैम्फाइलोबैक्टर स्पीशीज एंड सैल्मोनेला स्पीशीज की वजह से. ओके, टेक इट डाउन एंड देन यू हैव टू सी कंटामिनेटेड फूड वाटर, ओरोफिकल रूट की वजह से आपका डायरिया हो रहा है. टाइफॉइड भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. टाइफॉइड, डायरिया, है ना. देन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज is spreaded through the contact of nasal discharge या sputum of the patient, that is your tuberculosis. Which among the following diseases is spread by intimate sexual contact or blood transfusion? AIDS, है ना. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है. सिम्टम्स आपके जो बेसिकली हैं ये दे लाइक मोस्टली हेल्पफुल इन योर थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस. ओके, सो यू कैन जस्ट टेक इट डाउन. चलो मूविंग अहेड. इन्फेक्शियस एजेंट्स. सी बच्चों, इन्फेक्शियस एजेंट्स सारे होते हैं. कौन कौन से? ऑलमोस्ट सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, ऑल ऑफ देम आर स्प्रेडिंग सम ऑफ द अदर डिजीजेस, राइट, है ना. तो बैक्टीरिया है और कुछ कॉमन डिजीजेस जो बैक्टीरिया, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सर्टेन एग्जाम्पल्स विच आर बैक्टीरियल डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, टिटेनस, एक्सेट्रा. राइट देम डाउन. Viruses, most common nowadays, COVID-19, AIDS, polio, rabies, है ना. COVID, AIDS, right, ठीक है. measles, mum, polio, smallpox, chickenpox सबको लाइफ में एक बार होता ही है, ये तो दस्तक देगा ही. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देन प्रोटोजोन्स की वजह से हो रहा है आपको मलेरिया, प्लाज्मोडियम, काला आजर. ठीक है, राइट डाउन द एग्जामिनेशंस कॉज्ड बाय लीशमेनिया, हेलमिंथ्स की वजह से जो हो रहा है, राइट. एंड हेलमिंथ्स मोस्टली इंटेस्टाइन को हमारी इन्फेक्ट करते हैं. टीनियासिस जो कि टेपवर्म की वजह से हुआ, एस्कैरियासिस जो कि राउंड वर्म की वजह से हुआ, एलिफेंटियासिस जो कि फिलारियल वर्म की वजह से हुआ. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिलारियासिस. ऑलराइट, देखो एसिस, इयासिस इज द suffix for all of them. All right, so you need to know the examples exactly which amongst, because this can also come, which among the following is a fungal infection, which among the following diseases is a fungal infection, or which among the following diseases represents infection due to a protozoa or is caused by because of protozoa. ठीक है, और which among the following diseases is caused because of a helminth. ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट जो इसमें दिए हुए हैं उनको लिख लो. जैसे फंगाई की वजह से हो गया रिंग वर्म, दाद हो जाता है ना, एथलीट्स फुट, है ना. ठीक है, सो आई होप इट्स डन. अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा थ्योरी था बच्चों, उसका एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, वहां कोई नहीं लिख पाया है. प्लीज इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और राइट इट डाउन, टेक अ पिक्चर ऑफ इट. ऑलराइट, सो दैट वुड रियली हेल्प यू. यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है? माइट्स से हो रहा है स्केबीज. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट. ऑलराइट, माइट से क्या हो रहा है बच्चों? स्केबीज. ठीक है, सो टेक इट डाउन. दिस इज द ओनली रीजन दैट आई एम नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मच, सो दैट यू गाइस कैन टेक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ऑलराइट, बिकॉज ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जस्ट अ क्विक रिविजन. आई एम टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू गेट. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. Means of spread or epidemiology. So the means of spread or the causes would come here in epidemiology. पहला हमने क्या देखा? डायरेक्ट ट्रांसमिशन. हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाना विदाउट एनी इंटरमीडिएट मोड, कुछ भी एजेंट नहीं हो बीच में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स, है ना. सो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया एक पर्सन के साथ, कोल्ड भी लग जाता है ना, और विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. सेकेंड वुड बी योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि अगर हम छींकेंगे, खांसेंगे, थूकेंगे, है ना, तो उसकी वजह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टीबी, न्यूमोनिया जैसे डिजीज हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर टेकिंग इट द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, उसमें पहला हम लेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन विदाउट एनी वेक्टर और कम्युनिकेशन सोर्स. उसमें आएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सेकेंड वुड बी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन. थर्ड, अगर सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो तो स्ट्रेट कांटेक्ट में आ रहे हो ना, तो वहां भी अलग अलग फेजेस बताए हुए हैं, स्टेजेस बताए हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है, फैक्टर्स बताए हैं.
जैसे टिटेनस, एनिमल बाइट्स, ठीक है, रेबीज, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन मदर टू द चाइल्ड जैसे कि जर्मन मीजल्स, सिफिलिस, HIV ऑल्सो, यू कैन ऐड द एग्जाम्पल ऑफ HIV, ठीक है। चलो अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब बच्चों स्ट्रेट अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बीच में एक मीडिएटर उसमें होता है, जैसे वेक्टर्स है ना, हाउस फ्लाई क्या कैरी करती है, कोलेरा के कीटाणु है ना, टाइफॉइड, डिसेंट्री, जैसे मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज रिस्पॉन्सिबल है। तो जी हर एक में कुछ ना कुछ बीच में एक वेक्टर, यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, यानी कुछ ना कुछ मीडियम है जो उसको फैला रहा है। वेहिकल बॉर्न मेथड, ठीक है, उसमें आएंगे आपके फूड, वाटर, आइस, ब्लड एक्सेट्रा एक्ट एज व्हीकल्स फॉर कैरिंग पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। फूड, वाटर या कुछ भी आप ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ या कुछ ऐसा ले रहे हो जिसकी वजह से आपको डिजीज स्प्रेड कर रहा है ना, उस गंदे खाने या पानी की वजह से, तो वो व्हीकल बॉर्न, कौन से, कोलेरा, टाइफॉइड, एड्स, ऑलराइट। एयरबॉर्न एपिडेमिक टाइफस पैथोजेंस रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर एंड डस्ट, ठीक है। चलो फर्माइट बॉर्न, कौन कौन से, ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस टू अ ह्यूमन बॉडी, जैसे किसी भी कोई कंटामिनेटेड आपने आर्टिकल छू लिया है ना, हैंडकरचीफ यूज कर लिया किसी का गंदा, कोम यूज कर लिया, क्लोथ्स यूज कर लिए, तो उससे हो जाते हैं ये, ठीक है। अनक्लीन हैंड्स, कोविड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। डिजीज के इफेक्ट्स हमने देखे थे, पहला जो थर्ड लेक्चर में हमने देखा था, सिंपल वी नो दैट नॉर्मल फंक्शंस ऑल्टर होते हैं, तो उसका टिश्यूज या ऑर्गन पे क्या इफेक्ट है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है ना। सो वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस। सो सी व्हाट्स हैपनिंग, ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक, यानी कि जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन पे और टिश्यू पे ही वर्क करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं टीबी की बात करूं, दैट विल एक्ट ऑन योर लंग्स, राइट, है ना। एंड देन देयर आर सर्टेन सिम्टम्स, कुछ कॉमन इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर बीमारी के आते हैं बच्चों, फीवर, वीकनेस, है ना। एंड देन कुछ आपके होते हैं जनरल इफेक्ट्स प्लस स्पेसिफिक इफेक्ट्स जो कि उसी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी डेंगू, नो नॉट डेंगू, इफ आई टॉक अबाउट जॉन्डिस, लेट अस टेक वेरी सिंपल, तो ओवरऑल उसमें जो कुछ सिम्टम्स आएंगे, दैट वुड बी वीकनेस, राइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग, फीवर, बट देन उसका ये जनरलाइज इफेक्ट है जो कि आपके कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर में भी आ सकता है, बट देन यहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक इफेक्ट क्या आ गया, लिवर पे, ऑलराइट, है ना, ठीक है। टेक इट डाउन इफ यू हैव नॉट रिटन इट। बच्चों बुखार आना अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या शरीर में बुखार आना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये एक तरीके से अच्छी बात है, बिकॉज ये बॉडी का प्रोटेक्टिव फिनोमिना होता है, सो दैट बॉडी राइजेज इट्स टेम्परेचर इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरियम जो भी अंदर इन्वेड किया है, ठीक है ना। अब सीवियरिटी ऑफ इफेक्ट्स, राइट, सो सीवियरिटी उतनी ज़्यादा होगी जितनी नंबर ऑफ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर गए, एंड वाइस वर्सा, उतनी कम होगी जितने कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर गए, है ना, और उनके इफेक्ट्स उतने ही कम होंगे, राइट। सो द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें बेसिकली क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है अंदर, है ना, सो उसमें वील टारगेट दी बायोकेमिकल पाथवेज जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, सबसे पहले तो प्राइमरी हमारी एंटीबॉडीज हैं वो हमें हेल्प आउट कर रही है ना, नहीं तो हमारी एंटीबायोटिक्स आर देयर विच आर प्रिपेयर टू ऑल्टर और स्टॉप दी बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना, जिससे कि वो ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है जिससे कि क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई फर्दर, राइट, एंड देन उनकी फर्दर ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ना। और इसके लिए हमारी इन केस मान लो नॉर्मल डिजीजेस के लिए हमारी बॉडी खुद रिएक्ट कर लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, लेकिन जो नहीं होता फिर उसके लिए आते हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे आप हेल्प आउट कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस,
है ना। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को हेल्प आउट कैसे करेंगे बच्चे लोग, जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, प्लीज इसका नोट ले लो एक बार। कभी भी कोई बीमारी हो जाएगी बच्चे लोग, सो विल ऑलवेज बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे, सबसे पहले हम लोग वर्क करते हैं उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने। मान लो किसी को लगातार वॉमिट हो रही है, लगातार वॉमिट हो रही है, होते ही जा रही है, तो हम लोग को क्या करना है कि वी फोकस ऑन स्टॉपेज ऑफ दो सिम्टम्स। पहले सिम्टम्स को हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके रिड्यूस करेंगे। फीवर बहुत ज़्यादा है उसको रिड्यूस करेंगे, वॉमिट बहुत ज़्यादा है उसको रिड्यूस करेंगे, कैन बी एनीथिंग, राइट, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी, ऑलराइट। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स फर्स्ट, देन सेकेंड हम लोग जो माइक्रो किसी वजह से वो इशू हो रहा है बॉडी में, हाउ डू वी गेट टू नो, वी गेट ऑल द टेस्ट डन एंड देन वी फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, वी फाइंड आउट द क्रक्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, है ना, एंड देन पोस्ट दैट वी एक्ट ऑन दैट, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना, उनका मल्टीप्लिकेशन रोकना, ठीक है, जिससे कि सिम्टम्स आगे और ना आए, सो उनको किल करना, वो हमारा सेकेंड स्टेप होता है। देन स्पेसिफिक मेथड्स, यानी कि दवाइयाँ, ऑब्वियसली बात है, जो भी हम ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट या जो भी इशू है ना, उसके अगेंस्ट हमें जो करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी एंटीबायोटिक्स उनको देनी होती है, पर्टिकुलर कुछ एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी है उसके अगेंस्ट, तो दैट इज हाउ वी डू, है ना। सो यस, फिर हमने देखा था व्हेन वी सफर फ्रॉम अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज आवर इम्यून सिस्टम फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, है ना। और अगर सेकेंड टाइम वही इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे हमने यहाँ पे बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल एक लिया था बच्चे लोग, दैट इज योर चिकन पॉक्स। एक बार चिकन पॉक्स सबको होता ही होता है, वायरल डिजीज है, राइट, वायरस एंड इन्फेक्शियस भी होता है, इसलिए कभी भी चिकन पॉक्स के पेशेंट को खुले हुए एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं ना, बिकॉज कम्युनिकेबल होता है, माता जी आ जाती हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो वही डिजीज है ये। तो अब क्या है कि हमारी बॉडी में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी अच्छी होती है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया, बॉडी रिकॉग्नाइज कर लिया, ओके दिस इज वायरस, अगली बार नहीं होने देना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ सेकेंड टाइम अगर वो वायरस आपको इन्फेक्ट भी करता है तो आपको फिर चिकन पॉक्स नहीं होता है, ठीक है ना। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों इम्यूनाइजेशन क्या होता है, राइट डाउन द डेफिनेशन, सॉरी लिखने का इतना टाइम नहीं है, स्पीड ज़्यादा हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स, है ना। वैक्सीन क्या होता है, प्रिपेरेशन ऑफ वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट्स और देयर प्रोडक्ट्स that can be injected or given orally to prevent specific diseases। हर डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन आती है, जैसे पोलियो के लिए अलग है, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, डिप्थीरिया के लिए, टिटेनस के लिए, वूपिंग कफ के लिए, राइट। सो सारे डिजीजेस के लिए अलग वैक्सीन आती है। उसमें कुछ तो आपकी पब्लिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, उसमें लगती है, जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स जो हैं वो फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं। सिमिलरली नाउ व्हाट आर ड्रग्स, important, usually medicines are used to kill the microbes and they aim at directing or blocking the biochemical pathways। तो antibiotics क्या होती हैं, वो होती हैं, वो chemicals होते हैं that kill or stop the growth of certain kind of microbes। they help our body to fight against diseases। if somebody has not taken it down, the definition of health, disease, immunization, healthy, disease free, all right, vaccines, antibiotics, all these definitions are very important बच्चों, प्लीज अच्छे से इनको लर्न कर लेना, ऑलराइट, इंपॉर्टेंट फॉर योर थियोरी एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आई होप इट्स डन। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों प्रिवेंशन हो सकता है इनका, यानी कि प्रिवेंशन को क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। प्रिवेंशन यानी कि प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्सिस। कैसे रोक सकते हैं हम ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली बात है, लोगों को एजुकेट करके, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, स्टरलाइजेशन हो, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम हेल्दी पर्सन, इरेडिकेशन ऑफ वैक्टर्स एंड कैरियर्स, है ना। ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नहीं होंगे, पानी स्टेगनेट नहीं होने देंगे, तो वहाँ पे मस्कीटोज नहीं आएंगे, राइट। सो दैट वे। चलो मूविंग अहेड, इम्यूनाइजेशन, provision of safe water supply, personal hygiene,
proper disposal of excreta, community hygiene. So these all are the modes of prevention. So please किसी नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट क्विक. ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा थियोरी बेस्ड है एंड यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट है ना. सो यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. ठीक है चलो जी, मूविंग अहेड. सम कॉमन वैक्सीन्स. अब हम लोग कुछ कॉमन वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. जैसे पहला जो कि हमें बहुत ही डेडली डिजीजेस के अगेंस्ट हमें क्या देती है बच्चे लोग, हम लोग को प्रोटेक्शन देती है. इसमें पहला आता है आपका डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. वूपिंग कफ इज योर पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. बीसीजी, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, जो कि टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है. ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, मीजल्स, टीटी वैक्सीन अगेंस्ट टिटेनस. टिटेनस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है बच्चों, बहुत खतरनाक. मसल स्पाज्म होता है इसमें, और इतना खतरनाक मसल स्पाज्म होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी अरेस्ट हो जाती हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ एंड द पर्सन डाइज. चलो मूविंग अहेड. ओके या सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे. ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से जो है वो वही बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं बच्चों, जैसे इस स्लाइड में किया है ना. लेट मी टेल यू, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ओके सो देयर वी गो. ये देखो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. आई होप दिस इज विजिबल टू यू गाइज, है ना. नहीं भी है सो मैं एक बार स्लाइड्स में बता देती हूँ आपको. ये देखो हेल्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों. साइंस ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल. ऑल राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा. मैं वापस से आपको स्लाइड्स एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट रखता है ना. सो कैन कम इन योर एग्जामिनेशन स्ट्रेट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. हाउएवर सी देयर आर सर्टेन थिंग्स बच्चों जो हमें देखने पे लगती है क्योंकि ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, बट देन you can write it on your own, that's not an issue, but then you have to write a very good language because that is how you yield marks, है ना. so your language must be effective, so you can just take it down from there. ठीक है चलो अब देखो कम्युनिटी और पर्सनल हेल्थ के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ से मिल सकता है. सो इवन इफ यू हैव टू राइट ओनली अबाउट द पर्सनल हेल्थ, द क्वेश्चन आस्क्स यू ओनली अबाउट द पर्सनल हेल्थ और द कम्युनिटी हेल्थ. अगर आपको ये टेबल मालूम है सो यू नो यू कैन जस्ट मेक अ थ्योरी आउट ऑफ इट, राइट. ठीक है, डिजीज की डेफिनेशन हिपोक्रेट्स जो है आपके फादर ऑफ मेडिसिन है ना. हेल्दी एंड डिजीज फ्री, अगेन यू कैन जस्ट टेक डाउन दिस टेबल एंड देन यू कैन मेक थ्योरी आउट ऑफ इट, राइट. हेल्दी और डिजीज फ्री मतलब पता होना चाहिए, राइट. हमेशा एक हेल्दी पर्सन जरूरी नहीं है डिजीज फ्री हो, और अगर कोई डिस्कम्फर्ट, अ पर्सन वुड बी डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट. ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प हो जाए. ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन. सो यू नो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस एज वेल, और मे बी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी बन सकता है इसके ऊपर. ठीक है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, बिकॉज दिस कैन कम डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, देन यू कैन जस्ट मेक दिस टेबल एंड देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. कम्युनिकेबल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, एंड ऑल लाइक दैट, है ना. अक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस के बीच में डिफरेंस. अगेन बच्चों टेबल से हेल्प ये होती है कि इफ यू नो दीज टेबल्स वेल, नो, सो इफ यू आर नोइंग दीज टेबल्स वेल, व्हाट वुड हैपन इज दैट यू कैन मेक अ थ्योरी आउट ऑफ इट प्रॉपरली लेटर. ठीक है, समझ आ रहा है ना. सो सिमिलरली कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस, यहाँ पे इसका टेबल नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट टेक दी थ्योरी. ठीक है, इजी था. कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का भी यहाँ टेबल फॉर्म है. डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दी एग्जाम्पल. द कॉजेज ऑफ डिजीजेस ऑलरेडी टोल्ड, पैथोजेंस हो सकते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट हो सकता है. अगेन गुड फॉर योर थ्योरी. 3 लेवल जो है आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. पैथोजन, न्यूट्रिशियस डाइट एंड प्योर इम्यूनिटी, एंड लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, ये आपके डिजीजेस हैं यहाँ पे, यू मस्ट बी नोइंग. ठीक है ना. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स अच्छे से रीड आउट कर लेना सबके. ठीक है, सो द सेम बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई एंड प्रोटोजोआ, वर्म्स एंड माइट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. यू शुड बी नोइंग फॉर इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है,
बच्चों डिजीजेस बहुत सारे होते हैं, बट इज जस्ट दैट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना, so that was give you an idea for your examinations, ठीक है। मीन्स ऑफ स्प्रेड जो हमने देखा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर होता है तो डायरेक्ट कितने टाइप से होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट से, एनिमल बाइट से, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, और अगर इनडायरेक्ट होता है तो या तो वेक्टर्स होगा, वेहिकल बॉन्ड होगा, यानी कि खाने पानी के किसी पदार्थ की वजह से अंदर जा रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से जा रहा है, जैसे एड्स, एयरबॉर्न है, ठीक है, डस्ट या गंदगी की वजह से, फोमाइड बॉन्ड है, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स यूज कर लिया आपने तो उसके थ्रू, तो बीच में कुछ ना कुछ मीडिएशन है ना, स्ट्रेट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, अनक्लीन हैंड्स जैसे कि कोविड, राइट। फिर हमने ट्रीटमेंट पार्ट देखा था, कैसे ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं, कुछ कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, है ना। सो कोई भी डिजीज हो रहा है बच्चों तो उसके कुछ स्पेसिफिक कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, प्लस अगर कोई बड़ा डिजीज है तो उसमें आपके ऑर्गन स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी डिस्कस्ड अबाउट योर जॉन्डिस अफेक्टिंग लिवर, सीवियरिटी ऑफ डिजीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ट्रीटमेंट में बच्चों इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में हमने देखा था, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रोकना, उनके बायोकेमिकल पाथवेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म, बायोकेमिकल पाथवेज को रोकना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस को तोड़ना, ठीक है ना। सिम्टम्स पहले रिड्यूस करेंगे, कैसे हम पेशेंट को रिलीफ देते हैं, रिड्यूसिंग सिम्टम्स, उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारना, फिर उसके बाद तीसरे पे आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेथड्स, है ना। उसमें भी आप पढ़ोगे अभी इम्यूनाइजेशन के बारे में, उसका हमने पूरा जो प्रोसीजर होता है वो डिस्कस किया, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन, ड्रग्स की डेफिनेशन, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ डिजीज की डेफिनेशन जरूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन, ये पॉइंट्स आप ले सकते हो, इट कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड बी गिवन टू यू इन योर थ्योरी एग्जामिनेशन, कैन बी गिवन टू यू, राइट, है ना। और ये आपकी कुछ कॉमन वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है बच्चे लोग। सो आई होप इट्स डन, यस। सो आपका डिजीज व्हाई डू वी फॉल इल इज डन नाउ, ठीक है, रिविजन हैज बीन टेकन, सो प्लीज नहीं अभी भी समझ आ रहा है, वापस से आई हैव रिपीटेड दो स्लाइड्स, एनी कंफ्यूजन लुक फॉर दोज लेक्चर्स अगेन, everything has been already discussed in details. Revision part बच्चे लोग we cannot really take much in detail since we have to cover the entire lectures, so not possible, but yes जो भी important था again I've already mentioned here, so yes thank you so much for being with me, and if you really like the video, I always, आपको पता ही है मैं क्या बोलती हूँ ना, so yes I'm a little bit unwell today, so इसलिए वापस आई एम नॉट रिपीटिंग, सो फॉर वट एवर रीजन यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो, नेवर अ फोर्स, इट्स जस्ट दैट बी यू, ऑलराइट। एंड देन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, जिससे आपको ऐसे ही हम लोग हेल्प करते रहें, ठीक है। सो लेट अस एक्सेस यू एंड वाइस वर्सा, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स हिट दैट बेल आइकन, है ना। और मेरे बच्चों के लिए जो भी मेरे साथ थे यहाँ पे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, टाटा फॉर नाउ, अपना ध्यान रखिए, ओके, एंड आई विल सी यू लेटर, बाय, टेक केयर।